afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? Types of motion. The types of motion. Okay. So coming forward to according to your syllabus, that is the next topic is the frame of reference. Okay. Have you seen the syllabus? Have you go through the syllabus? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next topic according to your syllabus is the frame of reference, right? So Shiv Narayan Kumar, right? Yes, sir. So your task is to to identify like which the number of present students. Like you have to write the name. Yes, sir. I'm writing that. Yes. So coming forward to the frame of reference, what is the frame of reference? And The point from which the motion of any object is observed is called frame of reference. the first, what is coordinate? Like Cartesian coordinate, generalized coordinate. What is it? If we talk about the frame of reference, there is two things that has to be remembered. The first is the position, and the second is the motion. Right. So if anything, any object is in rest, so we can say it is a static system, and like we have discussed in the last class, and any system which is in motion, that is called a dynamic system. Right. So is the position is relative? My question is the position is relative? Yes, sir. How will you determine that the position is relative? In example? So, for example, if we measure a distance of, let's say, in a room, if we measure some distance of chair from different sides of a wall, then the measurements might be different. So, here it is important that from where I am measuring the distance of that chair, from which wall I am measuring that. So, it is important here. It's not an appropriate example. Give some general example you can observe in the day-to-day life. Anyone else? So, for example, if I am observing a moving bus, then the person who is sitting inside the bus is in motion according to me. And if I am sitting in that bus only, like my concern is about position, it's not in motion. Like, yes. Yes, Ritik Kumar, you are. Ritik Kumar. Yes, sir. Yes. Sir, for example, sir, it's about distance method. So, sir, like if I measure something from a place, like it's 50 kilometers from there, like, and then after going to, sir, can I explain in Hindi? Sir, can I explain in Hindi? Hello? Sir. Sir, can I explain in Hindi? हाँ, sure, no problem. हाँ, सर जैसे कि मान के चलिए हम एक जगह जाते हैं, एक प्लेन मानते हैं जहाँ पे सर मतलब 50 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और वहाँ पे जाएंगे इस पोजीशन में, सर वहाँ से फिर कोई और जगह है वो 30 किलोमीटर है, तो सर इनिशियल पॉइंट से वो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा ना सर, मतलब सर अगर डायरेक्ट देखेंगे सर 2-3 पार्ट हो गया ना, एक 80 हो गया, 50-80, और एक जो ये हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकलेगा वो एक अलग हुआ. It's my chance. I am giving a basic, very common example. Okay. Suppose suppose two people are there in a road. Okay. One is other side of the road. One is like left side of the road, and other is the right side of the road. Right. And considering that
the first person that is on the left side of the road is, it's suppose a name is Ram, okay, and the second person is Shyam, okay. So and the car is moving, car is moving on the road, right? So according to that particular car, the Ram, the left hand of the Ram is supposed to be the right side of the Shyam. You are not getting? Hello? Yes, sir. सपोज यहाँ पे हमने Yes, sir. हाँ, यहाँ पे हमने दो लोग का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक का नाम है, एक बंदे का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है। वो रास्ते के लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में खड़े हैं। राम राइट हैंड साइड में खड़ा हुआ है, श्याम जो है राइट हैंड साइड में, सॉरी, राम जो है राइट हैंड साइड में है, श्याम जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। सो कार जब मूव कर रहा है, ठीक है, कार जब मूव कर रहा है तो कार से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जो राम का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हैंड है वो श्याम का राइट हैंड साइड वाला हैंड होगा नहीं होगा? ये सर होगा। हाँ, सो दैट इज द पोजीशन इज रिलेटिव, कि हम लोग उसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं, कहाँ से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So another thing is like motion. If we talk about the motion is also relative. ठीक है? The best example is the motion is relative. Okay, one thing I have to share the screen, then it is more clear to you. Yes, screen दिख रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ, पोजीशन इज रिलेटिव, एक समझ में आया सबको? कैसे रिलेटिव? स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? सर दे रहा है। दे रहा है सर। पता नहीं सर, मेरा तो नेटवर्क है लेकिन पता नहीं स्लो किस। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बस वेरीफाई कीजिए आपका नेटवर्क इशू होगा या फिर सर बोलिए सर। हाँ, सो अगर हम ये समझ में आया पहला चीज, द पोजीशन इज रिलेटिव कैसे हो रहा है, आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं फिजिकल एग्जांपल से? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब the second thing is like motion is relative. How will you define the motion is relative? Suppose I am taking the force system like four observer. ठीक है? The train is moving in the left hand side. Hello, left hand side. ठीक है? Train, अगर कोई train है तो तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तीन ऑब्जर्वर है, ठीक है, चार नहीं तीन ऑब्जर्वर है। पहला ऑब्जर्वर है पॉइंट पी, मतलब पी है, वो एक रेस्ट में है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वर है क्यू, वो तुम्हारे एक स्कूटर में है और वो ट्रेन के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना। और तीसरा ऑब्जर्वर है आर, और वो कार में है, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या जो मोशन है, जो ट्रेन का मोशन है पॉइंट पी क्यू, मतलब पी के द्वारा या फिर क्यू के द्वारा या फिर आर के द्वारा, क्या एक ही जैसा रहेगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होगा। पॉइंट पी को ट्रेन का स्पीड कितना लग रहा होगा, कितना फील हो रहा है, कितना उसको 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। एंड स्कूटर पे है उसको क्या फील हो रहा होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर आवर। एंड जो यहाँ जो कार में है ये पॉइंट 110 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये देखा कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ऑब्जर्वर के द्वारा
जो ट्रेन का जो स्पीड है हम लोगों को अलग अलग मिल रहा है, राइट? सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, कंक्लूड कर सकते हैं ना कि मोशन इज रिलेटिव सर. मोशन इज इन रिलेटिव, है ना? ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऑब्जर्वर पे. अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन का मोशन होगा, मतलब ट्रेन का स्पीड हमें पता चलेगा. या बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को उसका मतलब उसके मोशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो हियर वी कैन conclude that the position as well as the motion is the relative. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. अगर एग्जाम में आएगा, Yes, sir. एग्जाम में पूछा गया कि like how will you define like position and motion are relative, एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So coming forward to the frame of reference, right? So in that particular case, how will you define frame of reference? Like according to the motion is relative, position is relative. So how will you define frame of reference? It is what? It is like if you talk about in the Cartesian coordinate, so basically it is a coordinate system. Frame of reference है क्या? This is a coordinate system by which a position and the motion of a body can be described. Is it so? Yes, sir. So it is basically a coordinate system by which the position in the body can be described. Okay. I think in the last class I have given the example of a bird which is like flying in the sky, and if you want to determine its the correct position first. So how many coordinates required? 3 coordinates. 3. And if you want to calculate its motion, so how many coordinates are required? 3. 6. Which 3 coordinates? X coordinate, Y coordinate, and Z coordinates. No, in terms of what? Like in motion, if bird in motion, so how many coordinates are required? 6. 3 coordinates. Like which 3 coordinates? 3 coordinates of velocity, momentum, what? Of all, sir. Basically, if somebody is motion, the only thing required is momentum. Okay, so the 3 coordinates of momentum can be required. That is px, py, and pz. है ना? और वाला क्वेश्चन एक आप लोगों ने सुना होगा जो फेस के बारे में आप लोग सुने, किन्होंने सुना है? फेस क्या होता है? देखो, space is like a 6-dimensional space, okay, and it is a combination of the momentum space and the position space. बोलेगा ही. Position space is what? Simply a x, y, z coordinate, okay. But if we consider in the dynamic system, in order to find out the exact position and momentum of the particle, we require the 6 dimension, okay. That is x, y, and z, and px, py, and pz. Px, py, pz are the momentum coordinates. Right? So this is the phase space, basically a 6-dimensional space by which we have to find out the exact position and momentum of the particle, and it is be calculated in the dynamic system, okay, when the body is in motion. Okay, but here we talk about the Cartesian coordinate, in which by the simple frame of reference, and by which every point of a space may be described by the 3 number of coordinates, and that points are
x, y and z. Okay. Given the diagram here. Here I have described a body P using x, y and z coordinate. Okay. And here r is the position vector. That should be the relative to the origin O, and it will define as x I cap plus y j cap plus z k cap. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So one more thing, if you want to find out the exact which time, the exact time to find out the position of the particle. Okay. So here the one more coordinate has been added, that is the time coordinate. Okay. That will be represented as t. Okay. In order to find out the exact time of the particular position of a given body. Okay. So one more coordinate, that is t, is assigned. Okay. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में को हम लोग जो रेफरेंस फ्रेम जो तुम्हारे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तुम्हारा जो रेफरेंस फ्रेम होगा, दैट विल बी एक्स वाई जेड एंड टी. ठीक है. और इस तरह के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम. ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम, और इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, दैट विल बी द एक्स वाई जेड एंड टी. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. क्यों हमें टी का जरूरत पड़ा, क्यों हम इसका टी को हम इसको इम्प्लीमेंट किए यहाँ पे, ये चीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how many types of reference have been seen in the past classes you have seen? Like types Sir. of reference, frame of reference. 2, Sir, sir. two types. What is it? Inertial and non-inertial. Inertial frame and non-inertial frame. क्या होता है inertial frame? Non-accelerated. Non-accelerated. And non-inertial क्या होता है? Accelerated. Uniform linear acceleration जिसके पास हो और rotate, uniformly rotate कर रहा हूँ. अच्छा, क्या एक मेरा कंसर्न है, क्या कौन सा रेफरेंस फ्रेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है? Inertial frames. Inertial frame. दोनों करता है, या इनिशियल करता है या नॉन इनिशियल करता है? Sir, inertial frame. Inertial frame of reference. क्यों? तुम्हारा नॉन इनर्शियल में भी तो एक्सेलरेशन होता है. सर इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है. लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, और नॉन इनर्शियल में से नहीं फॉलो करता है. नहीं फॉलो करता है. कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग, सूटेबल एग्जांपल इसका? चलो इनर्शियल फ्रेम तो समझ गए कि लाइक इट्स फॉलो द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? Sir, moving on lift when observer is going through the lift and observing any motion inside the lift. अच्छा, सपोज मैंने एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, आप लोग किसी बस में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, ट्रैवल करने के बाद जब बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है सडनली, तो आप लोग आगे की ओर शिफ्ट होते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं. Inertia. हाँ, तो वो है क्या? It resists the change in the state of our motion or rest. राइट. तो वहां पे क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पे डिलीवर हो रहा है ना. अगर हम बात करें फर्स्ट वाले केस में, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें अगर फोर्स का हम बात करते हैं, लाइक फोर्स का हम जब भी बात करते हैं तो फोर्स शुड बी 0. अगर फोर्स 0 हो गया तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज इट? F = ma. ठीक है.
अगर फोर्स वहां पे जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली मास तो जीरो नहीं हो सकता है, किसी भी बॉडी का मास जीरो तो नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो फोर्स जीरो हुआ, एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बात करें, अगर हमारा फोर्स जीरो भी है, अगर हमारे बॉडी का फोर्स जीरो भी है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन उसमें होगा ना। जैसे बस का मैंने एग्जांपल लिया, अगर बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है तो सडनली आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है, आगे की ओर आप आगे की ओर मूव फॉरवर्ड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, तो वहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इवन इफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स इज जीरो, द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम, पहले हम लोग इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। यहाँ पे हमने दो फ्रेम लिया है, यहाँ पे दो रेफरेंस फ्रेम लिया है, एंड एस डैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे तुम्हारा दो रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन जो दूसरा रेफरेंस फ्रेम है वो आगे की ओर है, मतलब ऑब्जर्वर के द्वारा वो आगे की ओर मूव हुआ है, ठीक है। So the frame of reference by which it follow the Newton's law, it is called a inertial reference frame, ठीक है। और ये दो तरीके से हो सकता है, when the body is at rest, or it will move in a uniform velocity with the inertial reference frame, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में होता है, अगर मोशन में रहा बॉडी तो that follow the Newton's law of motion, ठीक है। And according to the Newton's law that F equals to ma, ठीक है। F equals to क्या होता है, ma होता है। अगर हम फोर्स को जीरो करते हैं तो तुम्हारा मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहला बात है कि इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है इस रेफरेंस, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिना फोर्स के द्वारा भी हम लोग को एक्सेलरेशन हमें मिलता है। क्लियर हुआ? यस सर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिव द सुटेबल एग्जांपल, ये सब आप लोग कर लोगे? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट, किसी को पूछना है कुछ? आप लोग को जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते जा रहे हैं या फिर क्या है? नोट डाउन कर रहे हैं सब या फिर सब आप लोग को ऑलरेडी पता है? सर इसको सर नोट डाउन। नहीं, नोट डाउन कर रहा था। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फिर सर नोट डाउन कर रहे हैं तो जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज नंबर में चला जाता हूँ, तो आप लोग अगर आप लोग लिखे नहीं होंगे तो एक बार आप लोग बोलिएगा, छोटा होगा तो, ठीक है? ठीक है सर। तो ये हो चुका है यहाँ तक या फिर? सर सेकंड पेज एक बार दिखाइए ना। ये सबका हो गया यहाँ तक? फोर्थ पेज नहीं, क्या है? यस सर। हाँ, ये फोर्थ पेज सबका हो गया? यस सर। सेकंड पेज ना? इसका छोटा है, आप नोट डाउन कर लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार अटेंडेंस के लिए सब कैमरा ऑन कर लीजिएगा।